India, 1857, a land of rich heritage and powerful empires, but under the shadow of British rule. Yeah, this is the story of one of the first and most significant uprising against the colonial power. That is the revolt of 1857. So, what triggered the massive revolt? Was it really just a military mutiny or something deeper? A movement that shook the foundation of the British Empire in India? Today, we dive into the key events, causes, and the heroes who sacrificed everything for the fight of freedom, impacts, nature, reason of failure, and conclusion. And in last, very significant, that is the previous year questions. So, just keep on watching. Welcome to our deep dive into the revolt of 1857, an event not only changed the course of the Indian history but also laid the groundwork for the freedom struggle that would follow. So, buckle up and let's uncover the hidden stories behind this great uprising. First, we can say that just have a look on background. So, the revolt of 1857 engulfed portion of north and central India. Okay, with the key centers of Awadh, Bihar, Jhansi, Delhi, and Kanpur. The revolt was triggered by a variety of factors. ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही वजह थी रिवोल्ट के पीछे, काफी सारी वजहें थी, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स थे, जैसे कि वी कैन सी द political causes, economic causes, army causes, and social religious causes. So these were the causes behind the revolt of 1857. इससे पहले हम देख लेते हैं. It was started on 9th of May 1857 by the 3rd Native Cavalry when soldiers refused to cartages. ठीक है, जो एक rumor थी that the cartages was filled with the and filled with the cow and pig fat. So it was started from there only. These are the heroes, great leaders were involved in the revolt. General Bakht Khan from Delhi, Begum Hazrat Mahal from Lucknow, Khan Bahadur was leading in Bareilly, Nana Sahib was leading in Kanpur, Rani Jhansi, Rani Lakshmibai was leading in Jhansi, and Kuwar Singh was leading in Bihar. There were all other leaders also. So, moving towards the political causes. So, the British policy of political annexation of Indian princely states adopted under the Lord Dalhousie. Okay, during 1849 to 1856. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1857 में स्टार्ट हुआ उसके बाद रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया. नो, princely states adopted under Lord Dalhousie in 1849 to 1856, during which more than 40 states were annexed. Okay, or threatened with annexation. और ये एनेक्स करने का पहले तो इन्होंने बहाना दिया था, दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मींस रूलर विदाउट हैविंग देयर ओन हायर, मतलब कि अगर किसी राजा का अपना खुद का बेटा नहीं है देन हिज स्टेट विल बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश. ओके, तो ये पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसके अंदर 40 स्टेट्स वर एनेक्स्ड. उसके अलावा और भी रीजंस दिए थे एनेक्सेशन के, like on a variety of grounds such as misgovernance and corruption. For example, the Awadh region in 1856 affected so many states. It was started on 9th of May 1857 by the 3rd Native Cavalry. So when soldiers refused to cartages. ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे. Now, moving towards the political causes. That was the annexation policy. What was the annexation policy by the Lord Dalhousie? That if any ruler is not having their own hire, their property, their state would be annexed. ठीक है, their state would be annexed. तो अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका स्टेट जो है वो एनेक्स कर लिया जाएगा बाय द ब्रिटिश.
और इसी पॉलिसी के तहत बाय द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन 40 इंडियन स्टेट्स वर एनेक्स्ड। ठीक है, उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अलावा भी इस पॉलिसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था, ये लॉर्ड डलहौजी के थ्रू लाया गया था। उसके अलावा और भी ग्राउंड्स दे दिए सच एज मिसगवर्नेंस एंड करप्शन। फॉर एग्जांपल अवध रीजन इन 1857, अवध को एनेक्स किया ऑन विच ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसगवर्नेंस एंड करप्शन, कि आप भाई अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हो स्टेट को और बहुत ही ज्यादा करप्शन हो रहा है, तो ये हम एनेक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसी इन सारी चीजों के तहत उन्होंने 40 स्टेट्स एनेक्स कर लिए। अब जब प्रिंसली स्टेट्स एनेक्स कर लिए जाएंगे, thus the shift in British policy towards the Indian princely states, and that is the annexation policy, and the threat of annexation saw the princely rulers assuming a key leadership. अब भाई जिसके स्टेट्स जाएंगे उसके अंदर ज्यादा एंगर होगा, so it saw the princely rulers assuming a key leadership in what, in the revolt of 1857. So these are the political causes. Now moving towards the economic causes, high burden of taxation. बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। एनेक्सेशन ऑफ अवध अफेक्टेड पीजेंट्स, अवध को एनेक्स कर लिया था तो वहां के पीजेंट्स की कंडीशन और ज्यादा वर्स हो गई थी, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था पीजेंट्स का। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उसके बाद डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब क्या करते थे, ब्रिटिश एक्सपोर्टेड कॉटन एंड जूट फ्रॉम इंडिया एट अ लोअर प्राइस एंड सोल्ड आउट एट द हायर कॉस्ट। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो गया था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आर्मी कॉजेज, दैट वाज द चीफ सेंटर। चीफ सेंटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिपाही म्यूटिनी से ये शुरू हुआ था। दैट वाज जो एनफील्ड राइफल थी, द एपिसोड ऑफ एनफील्ड राइफल ग्रीस्ड विद द बीफ एंड पिग फैट, काउ एंड पिग फैट। तो उसी यही से रिवोल्ट ऑफ 1857 की स्टार्टिंग हुई थी। देयर वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द आर्मी। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था विद रिगार्ड्स टू सैलरी एंड प्रमोशन। सैलरीज बहुत ज्यादा लो थी और प्रमोशन नहीं होता था एक लेवल तक, उसके बाद प्रमोशन नहीं होगा। अवध एनेक्सेशन, अवध को एनेक्स किया तो 50% जो सोल्जर्स थे ना वो डिक्रूट कर दिए गए। इंडियन आर्मी में जो 50% सोल्जर्स थे उनका डिक्रूटमेंट हो गया। दैट वाज द आर्मी कॉजेज। इट लीड्स टू एंगर, क्रिएट एंगर इन द इंडियन आर्मी। और मेजर फैक्टर था एनफील्ड राइफल, because it hurts the religious sentiments of the people like Hindu and Muslim both. Now moving towards the social-religious issues causes, so British introduced number of social-religious reforms to legislative means such as abolition of sati, widow remarriage act, which were seen by the conservative section of religious leadership as interfering with their religious practices. मतलब कंजर्वेटिव सोसाइटी थी उसे ये बर्दाश्त नहीं हुई ये दो चीजें कि नहीं भाई सब जगह बाकी सब ठीक है बट नो, हियर यू आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर। ये रिलीजियस इश्यूज है भाई, सती को अबॉलिश कैसे कर सकते हो? एवरीबडी नोज व्हाट वाज द सती प्रथा। इफ अ हस्बैंड डाइज देन वाइफ हैज टू बी सेट इनटू फायर विद द हस्बैंड। ठीक है, तो वही था कि आप सती को अबॉलिश नहीं कर सकते। और ब्रिटिश ने अबॉलिशन ऑफ सती पर एक एक्ट लाया था 1829 में। विडो रीमैरिज, एक बार कोई विडो हो गया उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती। दैट वाज द रूल मेड बाय द कंजर्वेटिव सोसाइटी ऑफ द इंडियन। ठीक है, तो अब while the leadership of the revolt 1857 came from the conservative sections of the religious leaders. ठीक है, the old zamindari classes, the rebellion section and the army and the princely estates, these masses were composed largely of peasants. ठीक है, अब ये जो सारी चीजें थी, it creates a big impact on the masses. उसके बाद का ठीक है भैया, now we will not stop here and we will fight against the British rule. We have to throw the British out from our country. वो फेल हुआ पास हुआ वो एक अलग बात है, बट यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया था रिवोल्ट। आगे आते इम्पैक्ट्स देखते रिवोल्ट के। ब्रिटिश क्राउन इंट्रोड्यूस व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857।
1857 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास कर दिया ब्रिटिश ने। इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी ना सब कुछ, वो एंड हो गया। अब डायरेक्ट कंट्रोल हो गया ब्रिटिश क्राउन में। उन्होंने वजह दे दी दैट यू कैन नॉट हैंडल इट बाय योरसेल्फ, यू कैन नॉट हैंडल इट नाउ, डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। अब एक और इंट्रोडक्शन हो गया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, स्टेट फॉर इंडियंस। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट हो गई। ये क्वेश्चन आ सकता है। और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियंस when it was created under the act of 1857, introduced viceroy's position, viceroy की position क्रिएट कर दी गई थी नहीं पहले, टू मेंटेन लिंक्स विद प्रिंसली स्टेट्स, ताकि प्रिंसली स्टेट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। क्यों? बिकॉज नाउ प्रिंसली स्टेट्स विल सर्व एज द एजेंट्स ऑफ ब्रिटिश। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो अपने फायदे के बारे में सोचेंगे ना, तो सर्व करेंगे एज अ एजेंट्स ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश उनको कुछ लालच देंगे ना, कैरेटिन स्टिक वाला साफ। कॉलोनियल ग्रिप, अब जब प्रिंसली स्टेट फेवर में आ जाएंगे वाइसरॉय के, तो एक कॉलोनियल ग्रिप हो गई ना इंडिया पर। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रिप्लेस्ड विद सबऑर्डिनेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को रिप्लेस कर दिया गया। अब सबऑर्डिनेशन में क्या हो गया? सबऑर्डिनेशन में जो प्रिंसली स्टेट्स थे कंटिन्यू विद द रूल एज एजेंट्स ऑफ ब्रिटिश। रूल आप ही करोगे, ठीक है, रूल आप ही करोगे, बट एज अ एजेंट ऑफ ब्रिटिश। हम चेंज नहीं करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी एनेक्स कर ले, सब कुछ आप ही के नाम होगा। वो रियल पावर्स और नॉमिनल पावर्स वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे रियल हेड और नॉमिनल है ना, फिर नॉमिनल हेड जो होता है बस उस नाम का होता है, पावर्स जो होती है लाइज विद द रियल हेड। तो यहाँ रियल हेड थे ब्रिटिश, प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो नॉमिनल हेड्स बन चुके थे, जो रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स थे। अब इंक्रीज नंबर ऑफ यूरोपियंस इन आर्मी, आर्मी में यूरोपियंस के नंबर इंक्रीज कर दिया। पहले जो रेशो था 1:3, 1 वाज ब्रिटिश, 3 वर इंडियंस, ठीक है। अब इस रेशो को चेंज कर दिया गया टू 2:3, लाइक 2 नाउ, 2 आर ब्रिटिश एंड 3 आर इंडियंस। तो ये प्रोपोर्शन बढ़ा दिया गया। दीज वर द इम्पैक्ट्स ऑफ द 1857। आगे और भी इम्पैक्ट्स है। रीऑर्गेनाइज आर्मी अलोंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल आइडेंटिटीज। भाई ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी शुरू हो चुकी है। अब आप लिंग्विस्टिक बेस पे अलग कर दो, रीजनल बेस पे अलग कर दो, ये दोनों आइडेंटिटीज के थ्रू लोगों को अलग कर दो, तो उनके अंदर से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, जो इमोशन है, वो अपने आप ही चला जाएगा। उनको लिंग्विस्टिक और रीजनल ये सारी चीजें प्यारी हो जाएंगी। तो जब ये चीजें आर्मी आप इसके बेसिस पर क्रिएट और ऑर्गेनाइज करोगे, तो नेशनलिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट एंड राजपूत रेजिमेंट्स, इसके बेस पर उन्होंने आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, विच प्रिवेंट द राइज ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। ठीक है, अब नेशनल सेंटिमेंट्स क्रिएट नहीं होंगे, इसकी जगह लिंग्विस्टिक सेंटिमेंट्स आ जाएंगे और रीजनल सेंटिमेंट्स आ जाएंगे। तो जब डिवाइड ही हो जाएंगे लोग ग्रुप्स में अलग अलग, तो वो क्या इकट्ठा लड़ेंगे फिर। ये एक मतलब रिफॉर्म्स जो थे ना आफ्टर 1857, ये एक प्रिपरेशन थी कि आगे कोई ऐसे रिफॉर्म्स ना क्रिएट हो, आगे कोई ऐसा बड़ा एक मेजर इश्यू ना क्रिएट हो, और एक ऐसा कोई बैटल ना आए, कोई हडल ना आए आगे रूल करने में इंडिया के ऊपर। तो उसकी ये प्रिपरेशन थी सारी। रिफ्रेन फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेचर रिगार्डिंग, अब पिछली बार तो सोशल रिलीजियस इश्यूज पर हंगामा हो गया था कि भाई सती प्रथा और विडो रीमैरिज वगैरह वगैरह, अब इन्होंने छोड़ दिया, इन पर कोई लॉ नहीं बनाएगा, इसको छोड़ दो। रिफ्रेन फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेचर्स रिगार्डिंग सोशल और रिलीजियस इश्यूज, सोशल और रिलीजियस इश्यूज पर अब कोई भी लॉ नहीं बनेगा। डिक्रीज द रिक्रूटमेंट ऑफ अवध रीजन, अवध रीजन की रिक्रूटमेंट डिक्रीज कर दी गई, कम कर दिया गया। रिक्रूटेड मोर, ज्यादा कहाँ से लेने लगे? गोरखा और सिख से। बिकॉज गोरखा और सिख जो थे इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, रिवोल्ट को दबाने के लिए। तो अब जब इन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिश की हेल्प की थी, तो इन्होंने इनका रिक्रूटमेंट ज्यादा कर दिया एज कम्पेयर टू दी अवध रीजन। ठीक, डिसकंटेंट ऑफ पीजेंट्री, पीजेंट्री का डिसकंटेंट था, क्यों? ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पीजेंट्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, तो वो तो रहा ही रहा। आगे चलते। नेचर, व्हाट वाज नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? देयर आर सो मेनी डिफरेंट views regarding this. Many historians has
many views regarding this, तो वो देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं it was more organized and the large territorial reach, ठीक है, as compared to other revolts। other revolts में जैसे ट्राइबल रिवोल्ट्स वगैरह और भी सारे रिवोल्ट्स हुए थे, उसके कंपैरिजन में as compared to that it was the large territorial reach, ठीक है, और it was the more organized revolt of it। वीटी सावरकर ने कहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है क्योंकि इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियंस व्हाइल व्हेन द ब्रिटिश वर रूलिंग ओवर द इंडिया, पहली बार ऐसा हुआ था कि ये इतना एग्रेशन एक बैटल की फॉर्म में आ गया, रिवोल्ट की फॉर्म में आ गया। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, सो इट वाज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एम, कुछ लोग कहते हैं एम क्या था, एम्पावरिंग द मासेस, लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कम थे, बस ये था एम्पावर किया जाए मासेस को, जो मासेस है उनको एम्पावर किया जाए, लोगों को एम्पावर किया जाए। डिफरेंट व्यूज, मेनी हिस्टोरियंस पॉइंटिंग आउट रिवोल्ट वाज लार्जली रीजनल अटेम्प्ट। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं दैट इट वाज लार्जली रीजनल अटेम्प्ट बिकॉज it was limited to LTD here is limited, it was limited to north and central India। ये north और central India में ही था, so it was the regional attempt and lacked national spread, ठीक है। कम जगह में था ये रिवोल्ट, सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में था, और रीजनल एक्सटेंट इसका जो था वो काफी कम था। इसी वजह से नेशनल स्प्रेड इसका इतना नहीं हो पाया, नहीं हुआ। आते हैं रीजंस ऑफ फेलियर। अब ये तो समझ में आ गया कि ये रिवोल्ट नहीं कामयाब हो पाया, इसके कुछ फायदे नहीं हुए, बल्कि ब्रिटिश और ज्यादा अटेंटिव हो गए। बट ब्रिटिश को कहीं ना कहीं ये पता लग गया कि नाउ इंडियंस कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, बस उनको ये पता लग गया। बाकी ब्रिटिश जो थे वो और ज्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि उन्हें एक थोड़ा सा अटेंटिव हो गए वो कि भाई ये इंडियंस है, ये आवाज उठा सकते हैं, तो एक कदम आगे चलने वाली बात होगी यहाँ पर। So what was the reasons of failure? Limited territorial spread। Limited territorial spread था, ये हमने बैकग्राउंड में भी पढ़ा था। It was limited to only northern part and central India। Second is British military and technologically superior। British जो थे वो militarily और technologically superior थे as compared to Indians। It was much obvious because India को उन्होंने छोड़ा ही नहीं था किसी लायक, सब कुछ तो वो लेकर, मतलब आधा तो डिस्ट्रॉय कर चुके थे इंडिया को, तो वही है। और सुपीरियर भी थे भाई, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर तो थे ही थे। हमारी सोसाइटी जो थी, इंडिया वाज एग्रेरियन सोसाइटी, हम लोग टेक्नोलॉजी में कभी भी इतने ज्यादा सुपीरियर नहीं थे, तो वो तो टाइम बहुत दूर है। लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, कोई एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी। अच्छा, रिवोल्ट स्टार्ट होने से पहले ये सारे लोग, सारे लीडर्स जो थे स्टेट्स के, वो इकट्ठे होकर गए थे टूवर्ड्स दिल्ली टू बहादुर शाह जफर उनके पास, ठीक है। दैट वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, और वो कोई ऐसे इतने नहीं थे, तो लीडरशिप उनकी ली थी, बहादुर शाह जफर की लीडरशिप ली थी। और दैट इज नॉट जाफर, दैट इज जफर, बहादुर शाह जफर की लीडरशिप के अंडर ये हुआ था। बट वो इतने एम्पावर्ड नहीं थे। दैट वाज द ही वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, और उनका कुछ लीडरशिप काम नहीं आई, तो लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी वहां पर। नो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बॉन्ड, कोई स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बॉन्ड नहीं था, बिकॉज डिवाइडेड थे ना, तो दैट कुड कीप द रिवोल्ट टुगेदर। रिवोल्ट इकट्ठा नहीं रह पाया, मतलब एक सेंट्रल आइडिया नहीं था किसी के पास, बिकॉज दैट वाज फर्स्ट टाइम। नाउ कंक्लूजन, डिस्पाइट इट्स शॉर्टकमिंग्स हमने भी, मतलब फेलियर में शॉर्टकमिंग्स ही देखी है। रिवोल्ट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इंस्पायरिंग द फ्यूचर जनरेशन। अभी मैंने आपको बताया ना दैट इंडियंस कैन आल्सो रेज देयर वॉइस। अब एक सीख मिल गई कि भाई उस टाइम पर आवाज उठाई थी तो अब भी उठा सकते हैं, बट इन अ बेटर वे। तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बन गया। लाइक उसके बाद काफी सारे रिवोल्ट्स हुए, दैट वाज पीजेंट रिबेलियन, ट्राइबल रिबेलियन, सन्यासी रिबेलियन एंड इंडिगो रिबेलियन, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए उसके बाद भी। तो ये एक इंस्पिरेशन बन गया फ्यूचर जनरेशन के लिए। मूविंग, लेट्स जस्ट मूव अहेड टुवर्ड्स द PYQ। A mighty popular revolt broke in dash and central India called the Great Revolt of 1857। तो अभी हमने डिस्कस किया ना इन द लास्ट स्लाइड, दैट इज
northern and central India. Second question is identify the wrong statement. इसमें wrong statement बता दें. The most important cause of the popular discontent was economic exploitation. Yeah, before 1857, economic exploitation was there. Another important cause was the complete destruction of its traditional economic fabric. अब क्या हुआ था, एक्सपोर्ट करते थे ये लोग बहुत ही कम कॉस्ट में, और उसके बाद सोल्ड आउट करते थे बहुत हायर कॉस्ट पर, तो ये यहाँ की ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक का डिस्ट्रक्शन हो रहा था. बोथ इम्प्रोविज द वास्ट मास ऑफ पीजेंट्स, ये भी सही है. ब्रिटिश लैंड एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वर आल्सो very exploitive in nature, so it is also true. So the wrong बताना है ना, तो इसमें से कोई भी wrong नहीं है. None of the above is wrong. Moving towards the next, that is who said the quote about the great revolt of 1857 as scourge to the people. ये कहा है विलियम एडवर्ड ने. फॉरेन सर्विसेज अलाउंस वाज कॉल्ड, जो फॉरेन सर्विसेज अलाउंस थी इन बिफोर 1847, दैट वाज कॉल्ड द बट्टा. ठीक है, उसको बट्टा कहा जाता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द एपिसोड ऑफ द cartridges provided the spark of the sepoys, greased cartridges. Okay. Next question. The grease was in some instances composed of beef and pig fat. The use of the grease cartridges would endanger the religion of Hindu and Muslim, because cow is considered as a religious factor for the Hindus, and pig is prohibited in the Muslim religion. So it hurts the sentiments of Hindu and Muslim sepoys. The revolt began at शुरू कहाँ हुआ था revolt? It was began in, ये आप बताइए चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट इज on 24th April 90 man of the 3rd native refused to accept the greased cartridges. Native of what? Cavalry. अभी हमने पढ़ा था ना, cavalry. The strong centers of the revolt of British were, कौन से centers थे? A, B, C. तीनों. दिल्ली में भी था, कानपुर में भी था, एंड लखनऊ में भी था. सेंट्रल इंडिया में था, ये सेंट्रल इंडिया में तीनों चीजें आती है. A young soldier was hanged on 29th of March 1857 for revolting single-handed and attacking his superior officials. ये कौन था? It was Mangal Pandey. These storm centers. Oh, repeated question है. All of the above होगा इसका. Who led the revolt at कानपुर? कानपुर में revolt किसने किया था? स्टार्ट कानपुर में रिवोल्ट स्टार्ट किया था नाना साहेब ने. ठीक है. Who represented the popular and plebeian elements at the headquarter of revolt? That was Bakht Khan. ठीक है. Next. Okay, so इतने ही है. We are completed with the topic, that is the revolt of 1857, and in next lecture we would continue the further रिवेलियंस, दैट इज पीजेंट, ट्राइबल, सन्यासी एंड इंडिगो. और इसमें से पीवाईक्यूज भी हैं काफी सारे, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. मोस्टली ये लोग छोड़ देते हैं, और फिर हमारे मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस की करेक्शन कम हो जाती है एग्जामिनेशन में, बट इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज feel free to give your feedback if you don't. Okay, thank you so much for watching.